محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں، کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے یعنی جسم کی خواہش، یہ غور سے سنیے گا، دنیا میں کیا ہے؟ جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی، وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہے۔ دنیا اور اس کی خواہش دونوں مٹتی جاتی ہیں، لیکن جو خداوند کی مرضی پر چلتا ہے وہ اب تک قائم رہے۔ نہ آنکھوں کی خواہش والا قائم رہے گا، نہ جسم کی خواہش پر قائم رہے گا جو جسم کی خواہش والا ہے، اور جو زندگی کی شیخی والا ہے وہ بھی قائم نہیں رہے گا، بلکہ وہی قائم رہے گا جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے۔ بے شک وہ غیر زبانیں بولنے والا ہے، بے شک وہ تالیاں بجانے والا ہے، بے شک وہ طبلہ بجانے والا ہے، بے شک وہ 2.5 گھنٹے دعا کرنے والا ہے، اگر وہ جسم کی خواہشوں کو پورا کرنے والا ہے، آنکھوں کی خواہشوں پر چلنے والا ہے، شیخی مارنے والا ہے، وہ کبھی بھی قائم نہیں رہے گا۔ وہ گر سکتا ہے، ابلیس اسے گرا سکتا ہے، لیکن وہی قائم رہے گا جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے۔ خدا کی مرضی کیا ہے؟ خدا کی مرضی یہ ہے کہ ہر کوئی توبہ کرے اور نئے سرے سے پیدا ہو کر اپنا جینا، مرنا، اٹھنا، بیٹھنا خدا کے لیے وقف کر دے۔ میں نے پہلے یہ بڑی خاص بات کہی، یہ خطرناک بھی ہے، کوئی ایگری کرے یا نہ کرے، بے شک وہ غیر زبانیں بولنے والا ہے، اگر وہ آنکھوں کی بدی میں ہے، اگر وہ جسم کی خواہش کو پورا، جسم کی خواہش کے بارے میں سارے جانتے ہیں نا، آپ میرے ساتھ ہیں نا؟ جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے، یہ گناہ ہے، اور ہر کوئی جانتا ہے کہ زندگی کی شیخی بھی یہ خدا کے حضور ناپسندیدہ ہے۔ کوئی شیخی مارتا ہے اپنی دولت پر، اپنے حسن پر، اپنے ٹیلنٹ پر، اپنی دعائیہ زندگی پر، اپنی خدمت پر، خدا کے حضور یہ ناپسندیدہ ہے، کیونکہ اگر یہ ایسا ہوتا تو خداوند یسوع نے خدا کا بیٹا ہونے کے باوجود اپنے آپ کو کیا کر دیا؟ بولیے، خالی کر دیا۔ کیا کر دیا؟ اگر آپ اکیلے نہیں بول سکتے تو میرے ساتھ ضرور بولیں۔ اپنے آپ کو کیا کر دیا؟ خالی کر دیا۔ بیٹا ہونے کے باوجود اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا، پست کر دیا، یہاں تک کہ پاؤں دھو دیے مچھروں کے، مسول لینے والوں کے، اس نے اپنے آپ کو بہت چھوٹا بنا لیا تاکہ اس نجات کے کام کو جو خدا نے بھیجا ہے میں وہ پورا کروں۔ اگر یسوع مسیح کو نجات کا کام دیا گیا ہے تو مجھے اور آپ کو بھی اس زمین پر کچھ رول ریگولیشن دیے گئے ہیں کہ ہم کیسے زندگی گزاریں۔ ہم بھیڑیں ہیں، بکریاں نہیں ہیں۔ یہاں ہم سب گاؤں کے رہنے والے، ہم سب جانتے ہیں، بکریوں کی نیچر بھی جانتے ہیں اور بیڑوں کی نیچر بھی جانتے ہیں۔ کوئی بتا سکتا ہے بیڑوں کی اور بکریوں کی؟ جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی بتا سکتے ہیں، کوئی بھی، کہ بیڑ کی نیچر اور بکری کی جو نیچر ہے وہ بتائے ذرا، کوئی بھی بتا دے۔ کہ میرا مالک کدھر ہے اور میں نے جانا کدھر ہے۔ تو آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم بکریوں کی مانند تو نہیں ہے، کیا ہمارا کوئی استاد ہے، کیا ہمارا کوئی باپ ہے، کیا ہمیں کوئی گائیڈ کرنے والا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے جو ہمارے دل میں آتا ہے، جیسی ہماری سوچیں ہیں، جیسے خیال آتے ہیں، ہم ویسا ہی کرتے ہیں۔ اور قضات کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جب بنی اسرائیل میں کوئی قاضی، کوئی بادشاہ نہیں تھا تو جو کوئی کسی کو اچھا لگتا وہ وہی کر رہا تھا۔ تو اگر آج ایسا ہے کہ کوئی کلام کے مطابق نہیں ہے، کوئی اپنے استاد کی مرضی پر نہیں چلتا، تو وہ نہ بھیڑ ہے بلکہ وہ بکری ہے، اور جو کچھ بھی ہے وہ ہے لیکن وہ بھیڑ نہیں ہے، کیونکہ خداوند یسوع نے کہا کہ میری بھیڑیں میری آواز کو سنتی اور میرے پیچھے آتی ہیں۔ بھیڑیں کس کے پیچھے آتی ہیں؟ اور ہم نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ کیا میرے اندر بھیڑ کی نیچر ہے، کیا میں بھیڑ کی طرح ہوں، کیونکہ بادشاہی میں بھیڑیں داخل ہوں گی، بکری کوئی بھی ہے وہ داخل نہیں ہو سکتی۔
बकरी का मतलब ये है कि कोई जो कुछ भी कर रहा है और खुदा को भी खुश करना चाहता है, इस तरह नहीं हो सकता। कलाम में लिखा है कि जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है वो खुदा से दुश्मनी करता है, और दुश्मन कभी भी खुदा की बादशाही में नहीं जा सकता। अब हम जिस्म की और आंखों की ख्वाहिश पे बात करना चाहते हैं, जिसके बारे में आज हमने सुना है, तिलावत हुई है, मतन पढ़ा गया है। हम इसमें देखते हैं सुलेमान बादशाह, इसके बारे में कितने जानते हैं? अपना हाथ दिखाएं मेरे साथ में। सुलेमान बादशाह जो है, जितनी हिकमत इस शख्स को दी गई है किसी बादशाह को नहीं दी गई। जितनी दौलत इसे दी गई है किसी बादशाह को नहीं दी गई। खुदा ने 2 दफ़ा इसके साथ बराह रास्त इसके साथ बात की है। खुदा ने से कहा कि मैं तेरा खुदा हूँ और मैं तेरे साथ रहूँगा, और जिस तरह तेरी बादशाही है किसी की इस तरह की बादशाही नहीं होगी। जितनी हिकमत मैंने तुझे दी है किसी को नहीं दूंगा, और जितनी दौलत तेरे पास है इतनी किसी और बादशाह के पास नहीं है। इतनी हिकमत होने के बावजूद, इतनी दौलत होने के बावजूद खुदा ने 2 दफ़ा इसके साथ बात की है। और इसके अलावा सुलेमान बादशाह के बाप के बारे में कितने जानते हैं? कौन था इसका बाप? जी, दाऊद। ये बड़ी छोटी छोटी बातें हैं जो आप नहीं बता रहे, क्योंकि ये बताते इसलिए ना कि हमारी कलाम के साथ वाकफियत नहीं, हमारी बाइबलें जो हैं वो ऊपर छत्तियों पर पड़ी हुई है। तो जब तक बाइबल नहीं पढ़नी तब तक हम खुदा के जलाल को भी नहीं समझ सकते, उसकी पहचान में भी नहीं बढ़ सकते। तो इसका जब दाऊद बादशाह जिसका बाप है, तो जब वो इस ज़मीन से कूच करने को था तो उसने आखिरी वसीयत अपने बेटे को पास बुलाकर कही, वसीयत की कि ऐ मेरे बेटे मेरी बात सुन, अब मैं उस जहान को जाने को हूँ जहाँ साहब मेरे बाप दादा चले गए। तो मैं तुझे बताना चाहता हूँ कि अगर तू शरीयत की किताब पर अमल करे और खुदा के आइन और कवानीन पर उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारे तो तेरी बादशाही में किसी चीज़ की कमी ना रहेगी और खुदा तेरे साथ साथ रहेगा। ये खुदा ने खुद भी उसे कहा था और शरीयत वो पहले भी पढ़ चुका था, लेकिन उसके बाप ने वसीयत करते वक्त भी उसे दोबारा याद दिलाई कि तू खुदा के आइन और खुदा के कवानीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेगा तो बरकत ही बरकत है। आमीन। इसने खुदा की शरीयत भी पढ़ी है, इसके बाप ने इसे याद भी दिलाया है, वसीयत भी की है, लेकिन इस शख्स ने जितनी देर बादशाही की खुदा के आइन खुदा के कवानीन के मुताबिक, इसकी बादशाही जैसी किसी की बादशाही ना थी। दूर दूर तक बादशाह और मलका इसकी बादशाही को देखने आते थे। सबा की मलका दुनिया के आखिरी किनारे से इसके महल को देखने आई, इसकी बादशाही को देखने आई कि कैसी हिकमत के साथ इसने महल बनाया है। लेकिन जिस दिन, मेरी तरफ देखें, पीछे मत मुड़ के देखें, ये सुने, ये खास बातें हैं। जितनी देर तक सुलेमान बादशाह खुदा के आइन और खुदा के कवानीन मानता रहा, इसकी बादशाही कायम रही, इसकी हिकमत कायम रही, इसकी दौलत कायम रही, इसकी इज्जत कायम रही। और जिस दिन सुलेमान बादशाह ने खुदा के आइन को तोड़ दिया, खुदा के कानून को रिजेक्ट कर दिया, क्या किया था इसने? इसने आंखों की ख्वाहिश को, जो अभी पढ़ा गया है, जिस्म की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए इसने खुदा को नाराज कर दिया। कैसे इसने पूरा किया? इसने शरीयत में यह लिखा था कि तुम गैर मबूदों को पूजने वालों को ना अपनी बेटियां देना और ना उनसे लेना। तो सुलेमान ने आंखों से देखा कि वो खूबसूरत है और जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए गैर मबूदों को पूजने वाली लड़कियों के साथ इसने शादी कर ली। और शादी के बाद क्या हुआ कि उन बीवियों ने सुलेमान का दिल जो है अपने देवताओं की तरफ फेर दिया। सुलेमान अब खुदा का नहीं रहा। क्यों? क्योंकि इसने खुदा के आइन खुदा के कवानीन को तोड़ दिया। किसकी खातिर? जिस्म की ख्वाहिश की खातिर, आंखों की ख्वाहिश की खातिर। और इसने क्या किया कि हैकल के सामने मंदिर बनवा दिया और बेईमानी की हालत में मरा। जब हम जिस्म की ख्वाहिश को, आंखों की ख्वाहिश को पूरा करते हैं तब हम खुदा के नहीं रहते,
بے شک ہم دعا کریں، بے شک ہم کلام پڑھیں، بے شک ہم تالیاں بجائیں، بے شک ہاللویہ کے نعرے لگائیں، ہم خدا کے نہیں ہیں۔ آمین۔ کیونکہ ہم تب خدا کے ہیں جب ہم نہ جسم کی خواہش کو پورا کرتے ہیں، نہ آنکھوں کی خواہش کو پورا کرتے ہیں، نہ شیخی مارتے ہیں، بلکہ خدا کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں۔ خدا کی مرضی یہ ہے ہر کوئی توبہ کرے اور پاکیزگی میں رہ کر زندگی گزار کر میری بادشاہی کا وارث بن جائے۔ ہاللویہ۔ سلیمان بادشاہ جو ہے یہ خدا کا چنیدہ تھا۔ اللہ خدا نے خود کہا تھا کہ سلیمان میرے لیے گھر بنائے گا۔ داؤد کو کہا کہ تیرے ہاتھ خون آلودہ ہے، تو نہیں بنائے گا، تیرا بیٹا بنائے گا، لیکن یہاں پر آ کر بھی یہ فیل ہو گیا۔ اس کے بعد ہم کس کے بارے میں سیکھ رہے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ جی بیٹے بولے۔ ابھی میں بتانے لگا پھر میں پوچھوں گا، بولیے۔ جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش اور شیخی کی خواہش کے بارے میں ہم سیکھ رہے ہیں۔ یہ میں دوبارہ بھی پوچھوں گا کیونکہ گرمی میں میرا جو ہے وہ نہ ہو کہ میں گھنٹہ بولوں اور آپ کہیں ہمیں پتہ ہی چلا کیا بات ہے۔ ہاللویہ۔ ایک اور شخصیت کے بارے میں ہم دیکھیں گے، سمسون اور دلیلہ۔ سمسون اور دلیلہ کے بارے میں جانتے ہیں؟ سمسون اور دلیلہ انگلش میں ہے سیمسن اینڈ دلیلہ، اور اردو میں ہے سمسون اور دلیلہ۔ سمسون جو ہے، سمسون ایک سورما ہے اور ماں کے پیٹ سے ہی خدا کا نذیر ہے۔ ماں کے پیٹ سے ہی خدا کا کیا ہے؟ نذیر ہے، یعنی کہ چنیدہ ہے۔ اور خدا نے اسے کس لیے سورما مقرر کیا کہ یہ بنی اسرائیل کو چھڑائے گا فلسطینیوں سے، کیونکہ اس کی ماں بانجھ تھی بہت سالوں سے، اور خدا نے اپنے فرشتہ کو بھیج کر اسے بتایا کہ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا۔ اور جب اس نے پوچھا کہ جو بیٹا ہوگا اس کا کیا طور و طریق ہوگا، تو اس نے کہا کہ تو اس کے سر پر استرا نہ لگوانا اور نہ میں پینا، نہ کوئی نشاور چیز پینا، کیونکہ تیرا بیٹا جو ہے وہ پیٹ سے ہی خدا کا نذیر ہوگا۔ وہ پیٹ سے ہی خدا کا نذیر ہوگا۔ اور اس نے کہا کہ اس کا کام کیا ہوگا؟ اس نے کہا کہ وہ اسرائیلیوں کو فلسطینیوں کے ہاتھ سے چھڑائے گا۔ آج بھی بہتوں کو خدا بلاتا ہے کہ میرا کام کرو، لیکن دنیا کہتی ہے کہ میرے پاس تیرے لیے ٹائم نہیں ہے، میں وہ کام کرنا چاہتا ہوں، وہ چیزیں خریدنا چاہتا ہوں جو فانی ہیں۔ خدا یہ کہتا ہے کہ وہ برکت لے لو جو غیر فانی ہے، جس کا تعلق آسمان کی بادشاہی تک ہے، نہ کہ زمین تک ہے۔ تو سمسون کو خدا نے بلایا ہے کہ یہ فلسطینیوں کے ہاتھ سے چھڑائے گا، لیکن سمسون اور چکر میں پڑ گیا۔ سمسون آنکھوں کی خواہش اور جسم کی خواہش کو پورا کرنے میں لگ گیا۔ خدا نے بلایا کہ اسرائیلیوں کو چھڑائے گا، اسرائیلی وہاں کے وہاں ہیں، اور یہ اپنے چکر میں دلیلہ کے عشق میں آنکھوں کی خواہش اور جسم کی خواہش پورا کرنے میں لگ گیا، اور آنکھوں کی خواہش پورا کرنے کی وجہ سے، جسم کی خواہش پورا کرنے کی وجہ سے سمسون کی آنکھیں نکال دی گئی، اور بزرگی کے ایام میں اسے ذلیل و خوار کیا گیا اور اسے چکی پسوائی گئی۔ جب کوئی خدا کو چھوڑ دیتا ہے، خدا کی فرما برداری نہیں کرتا، اس کے کلام کی فرما برداری نہیں کرتا، تو وہ اس زمین پر ذلیل و خوار ہو سکتا ہے، چاہے وہ کچھ بھی کر کے دیکھ لے، چاہے وہ جتنے مرضی ہاتھ پاؤں مار لے، تب تک برکت نہیں ہے جب تک خدا کے کلام کی فرما برداری نہیں ہے۔ جب تک خدا کے آئین اور خدا کے قوانین کو کوئی نہیں مانتا، چاہے آپ دعائیں کروا لیں، چاہے آپ پادری 10-15 بدل لیں، دعائیں کرواتے رہیں، معجزے نہیں ہوں گے، معجزے ہونے ہیں تو یہ کلام کے وسیلہ سے ہونے ہیں۔ وہ اپنے کلام کو نازل فرماتا اور شفا بخشتا ہے۔ ہاللویہ۔ پادری بدلنے سے، چرچ بدلنے سے برکت نہیں آنی، برکت آنی ہے تو یسوع مسیح کے کلام سے، جو پادری نہیں بلکہ زندگیوں کو بدل دیتا ہے۔ یہ زندگیوں کو بدل دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرے پادری صاحب میرے سر پر ہاتھ رکھ کے دعا کریں، اس کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں جو یہ بات کہتا ہے کہ یہی اسپیشل سیشن ہے، اسی کے دوران جو شفا پا گیا اس کے بعد کوئی شفا نہیں پائے گا۔
इसको मान लें तो शिफा आपकी जिंदगी का हिस्सा है, मौजज़े आपकी जिंदगी का हिस्सा है, बरकत आपकी जिंदगी का हिस्सा है, इसी को मानने के सीधा से। आमीन। तो शमसून जो है, इसने भी आंखों की ख्वाहिश पर इसने अपने माँ बाप से जिद की कि मुझे उस औरत से शादी करनी है। इसके माँ बाप ने हालांकि कहा भी कि वो नामख्तूनों की बेटी है, तू अपने कौम में से क्यों नहीं करता? तो इसने कहा कि मुझे वो पसंद आ गई है। तो आंखों से देखी चीजों को जब हम अपने अंदर, आज भी बहुत सारे लोग आंखों की ख्वाहिश कैसे पूरी करते हैं? जब नाच रंग देखते हैं तो वो अपनी आंखों की ख्वाहिश को पूरा करते हैं, अपनी आंखों को तापते हैं, सेकते हैं, और जब अपनी आंखों से आप देखते हैं तो आप अपने जिस्म में उतार लेते हैं, और वो सारी बदी की बदी है। शमसून गिरा आंखों की ख्वाहिश की वजह से, जिस्म की ख्वाहिश की वजह से। सुलेमान गिर गया और इसने खुदा की हैकल के सामने मंदिर बनवा दिया। लेकिन एक हस्ती ऐसी है जिसकी मैं बात करने लगा हूं, जो मेरा और आपका मुनज्जी है, मेरा और आपका आका है, उसकी बात करने लगा हूं। जब उसको आंखों की ख्वाहिश और जिस्म की ख्वाहिश की ऑफर की इब्लीस ने, जब खुदावंद यीशु ने रोजा रखा, बियाबान में चला गया, आजमाने वाले ने आकर उसे आजमाया और सबसे पहली जो उसे ऑफर की, फरमा अगर तू खुदा का बेटा है तो ये पत्थर रोटियां बन जाएं। ये कौन सी ख्वाहिश है? वेरी गुड। किसने बोला है ये? तालियां, जोरदार तालियां इस बेटे के लिए। ये जिस्म की ख्वाहिश है। उसने जिस्म की ख्वाहिश की ऑफर की कि तुझे भूख लगी है तो ये पत्थर रोटियां बन सकती हैं, फरमा। तो उसने कहा कि लिखा है कि इंसान रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है, और वो कलाम है जो जिंदगी को बदल देता है। उसने इस ऑफर को क्या किया? ठुकरा दिया कि मैं जी सकता हूं खुदा के कलाम के वसीला से, मुझे ये जिस्म की ख्वाहिश को पूरा करना नहीं है। फिर उसने कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो मुझे क्या कर, झुक कर सिजदा कर, और ये दुनिया की तमाम सल्तनतें मैं तुझे दे दूंगा। ये कौन सी ख्वाहिश है? आंखों की ख्वाहिश है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं आंखों की ख्वाहिश को भी रिजेक्ट करता हूं। कलाम में लिखा है कि खुदावंद अपने खुदा ही को सिजदा कर। हालेलुया। उसने जिस्म की ख्वाहिश को भी, आंखों की ख्वाहिश को भी ठुकरा दिया। अब आ गई है जिंदगी की शेखी की बात। हालांकि यीशु मसीह शेखी मारना चाहते तो वो कुछ भी कह सकते कि मैं खुदा हूं, मैं जमीन और आसमान का कुल इख्तियार मेरे पास है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। लेकिन उसने फिर भी ये बात नहीं की। हमारे पल्ले भी कुछ नहीं होता, हम कुछ होते भी नहीं है, और गुरूर और घमंड और बदी से हम भरे होते हैं। हमारी जुबानें सारा दिन जहर उगलती हैं, रिश्तों की हम कदर नहीं करते, मुआशरे में हम रिजेक्टेड पर्सन होते हैं, फिर भी हमारी अकड़ जो है वो हमारे कद से भी ऊंची होती है। लेकिन खुदावंद यीशु ये चाहता है कि हम हलीम फरोतन, उसने कहा मुझसे सीखो, मैं क्या हूं? दिल का फरोतन, हलीम हूं मैं, मुझसे सीखो। तो हम सीखने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए मौजज़े हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। इसीलिए बेबरकती आज तक साथ साथ है। बहुत मेहनत की लेकिन साथ साथ नहीं है। मैं आपको कहता हूं आज 4 घंटे भी काम कर लें, लेकिन खुदा की बादशाही को कबूल कर ले, कलाम के वसीला से बरकत दुगनी होनी शुरू हो जाएगी। आमीन। 2 बातें की, जिंदगी की, उसकी आंखों की ख्वाहिश को, जिस्म की ख्वाहिश को यीशु मसीह ने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। आज लोग ये कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने काम करना है, खुदा की हजूरी के लिए टाइम नहीं है। मैं कहता हूं कि जब आप खुदा की हजूरी में आ जाओगे तो दौलत आपके पीछे आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि दौलत, इज्जत, शोहरत, बरकत कहां से आती है? सरफराजी ना मशरिक से है, ना मगरिब से है, ना शुमाल से है, ना जनूब से है, बल्कि यहोवा पाक खुदा की तरफ से। हमने अव्वल दर्जा हमेशा खुदा को देना है, ना कि आपने कामों को। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कामों की ये इबादत है। उनको ये मैं बताना चाहता हूँ, काम काम है और इबादत
इबादत है। अरे अजीजों, ये जो काम आप कहते हैं इबादत है, ये तो सजा मिली है। जब आदम में गुनाह हुआ तो खुदा ने आदम को क्या सजा दी कि तू अपने खून पसीने की क्या करेगा, रोटी खाएगा। और ये तो सजा है। लोग कहते हैं काम भी क्या है, इबादत है, इबादत है और काम है। इस बात को याद रखिए, इसको दर्जा मत दीजिए, खुदा को अव्वल दर्जा दीजिए। हालेलुया। तो जब जिंदगी की शेखी की बात आती है तो वो कहता है कि अपने तई हैकल के किंगरे से क्या कर, नीचे गिरा दे, क्योंकि तेरी बाबत लिखा है कि वो फरिश्तों को हुक्म देगा कि वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, तुझे ठेस ना लगे। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा, खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। तीनों बातों में खुदावंद यीशु हमारी तरह आजमाए गए, जिस तरह हम आजमाए जाते हैं। लेकिन हम जो है हवा और आदम की तरह गुनाह में फंस जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने हर चीज का इनकार कर दिया। हम भी गालिब आ सकते हैं, क्योंकि जब वजीर आजम जीतता है, कोई एक पार्टी जीतती है, तो उसके वजीर भी, सारे मिनिस्टर भी जीत जाते हैं। तो जब यीशु मसीह जीता है, यीशु मसीह फाते है, यीशु मसीह गालिब है, तो हम भी फाते हैं। हम फाते हैं। हम अपने आप को कभी कमजोर ना कहें। फकत हमें जरूरत है कि जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश और शेखी मारना बंद करें। कलाम में पतरस रसूल के खात में लिखा, आखिरी बात करूंगा, आप सब मेरे साथ बोल सकते हैं, जो कोई जिंदगी से खुश होना चाहे वो अपने होठों को बदी से बाज और अपनी जुबान को मक्कर की बात कहने से बंद कर ले अपना मुंह। क्या बोला इसका मतलब, अपना मुंह की कर लो, बंद कर लो। जैसा कहना नहीं, तेरे मैं कहन नहीं है कि अपना मुंह घर च भैन कहती है ना, है ना, अपना मुंह की कर लो। ਇਹਦਾ मतलब की कि दूसरे से ਜ਼ਹਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਲਕਿ ਕੀ ਕਰੋ, ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ बरकत चाहो। की चाहो, जहर उगलना बंद कर। इसीलिए पतरस ने कहा, अगर कोई जिंदगी से खुश होना चाहे तो वो अपनी जुबान को बदी से और अपने होंठों को मकर की बात कहने से बाज रखे। अगर खुश रहना चाहते हैं, तो अगर इरिटेट होना और दूसरों को जख्मी करना चाहते हैं, तो जो कुछ मर्जी बोलते रहो। ये आपको आज़ादी है। खुदा ने आज़ाद मर्जी पर मुझे और आपको बनाया है। हालेलुया। तो आज अजीज़ों, खुदा का कलाम ये सिखाता है, हवा को जब ये फल लिखा कलाम में कि वो फल देखने में खुशनुमा और अक्ल बख्शने के लिए खूब, तो हवा ने उस फल को लिया और अपने शोहर को भी दिया। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि नहीं, मेरे बाप का कलाम अव्वल दर्जा रखता है, ना कि ये दुनिया की चीज़ें। तो हमें भी दुनिया की चीज़ों पर गालिब आना है। बहुत सारे लोग, ईमानदारों का ये मसला है, यहाँ बेटियाँ भी हैं, बेटे भी हैं, सब बैठे हुए हैं। ये कलीसिया का खादिम होते हुए, खुदा का खादिम होते हुए, मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं कलाम को सदाकत और दयानतदारी से बयान करूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ईमानदार होते हुए भी वो उनको यह प्रॉब्लम है कि वो आंखों से बदी करते हैं। वो ना भी करना चाहे, उनका ये प्रॉब्लम है, वो फंसे हुए हैं। तो उनके लिए ज़रूरी है कि अपना दायां हाथ ऐसे अपने सर पर रोज़ रखें, हर सुबह हर शाम, और कहें, खुदा मैं अपनी सोचें, अपने ख्याल, अपनी आंखें तेरे लहू में महफूज करता हूँ, मुझे ख़रीद ले खुदा, मैं बदी नहीं करना चाहता, मैं अपनी आंखों की ख्वाहिश को पूरा नहीं करना चाहता। मैं ये बताना चाहता हूँ, ये जवानों का मसला नहीं है। बहुत सारे ऐसे हैं जो बुजुर्गी के अय्याम में जो चल भी नहीं सकते, इब्लीस उनसे भी आंखों की बदी करवाता है, जिस्म की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, आंखों की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। क्यों? क्योंकि उनके माइंड जो है, उनकी सोचे ख्याल जो है, इनको इब्लीस कैप्चर कर चुका है। पंजाबी में कहूँगा, जिसकी लाठी जिसने जहन को पकड़ा है, वो जैसे चाहे इस्तेमाल करे, बदी में करे, नेकी में करे, उसकी मर्जी है। तो जब हमारी सोचें, हमारे ख्यालों पर खुदा का कलाम राज करेगा, रूहुल कुद्स राज करेगा, तो हम हमारी ज़िंदगी में जो है पाकीज़गी ही और पाकीज़गी होगी। जब पाकीज़गी आ जाएगी तो रूहुल कुद्स अंदर आना चाहता है। हालेलुया। पाकरू कहाँ पर आना चाहता है? जहाँ पाकीज़गी है। जहाँ पाकीज़गी नहीं है, पाकरू को आप मांगते रहें, मुझे बार दे, मुझे बार दे, मुझे बार दे, आप कहते रहें, वो नहीं भरेगा।
जब पाकीज़गी आ गई, आंखें पाक हो गई, होंठ पाक हो गए, जुबानें पाक हो गई, दुनिया के कामों से नफरत हो गई, तब पाक रूह आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है। दिल दे बुए खोल दे, यीशु आना चाहता है। और यीशु कभी भी पाक जगह पर नहीं आना चाहता। यीशु वहाँ पर आना चाहता है जहाँ लोग तौबा कर लेते हैं। आमीन। आइए अपने सरों को झुकाते हैं। हमारे पास आज ये सुनहरी मौका है, कीमती मौका है। हर आँख बंद हो जाए, हर सर झुक जाए। हमारे पास ये कीमती मौका है। कोई किसी की तरफ ना देखे, कोई किसी की तरफ ना देखे, अपनी आंखें बंद करें और कलाम में लिखा है उस ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु की तरफ तकते रहें। अपने सरों को झुकाएं। और आज कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब भी तू तोला गया तू कम निकला। आज जितने इस कलाम के मुताबिक तोले गए हैं, अगर वो जिस्म की ख्वाहिश में मुब्तला थे, आंखों की ख्वाहिश में मुब्तला थे, शेखी में मुब्तला थे और दुनिया से मोहब्बत रखते थे, आज उनके लिए सुनहरी मौका है कि वो अपना दिल खुदा को दे दें, अपने गुनाहों का इकरार करें, तौबा करें। कलाम में लिखा है कि अगर जब तुम अपने गुनाहों का इकरार करो तो वो तुम्हें सारी नाराज़गी और तमाम गुनाहों से पाक करने में सच्चा और आदिल है। अगर कोई इसमें मुब्तला था, उसके लिए मौका है, वह बेशक खड़ा ना हो, अपना राइट हैंड अपने सर पर रखे, कोई किसी की तरफ ना देखे और तौबा करे, अपना आप खुदा को दे। आज खुदावंद यीशु उसकी ज़िंदगी में मौजज़ा करना चाहते हैं। मौजज़े आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएं। अपना दायां हाथ अपने सर पर रख लीजिए। जो अपना आप खुदा को देना चाहता है, जो अपने गुनाहों का इकरार करता है और जो दुआ करना चाहते हैं उनसे हो नहीं पाती, वो भी अपना दायां हाथ अपने सर पर रख ले। आज के बाद वो दुआ को बन जाएंगे। हालेलुया। खुदा ज़ात करने को, खुदा ज़ात करना, हर आँख बंद हो जाए। हालेलुया। खुदा की खात्मा मुबशरा महनाज से दरख्वास्त है कि वो दिल से इन लोगों को बरकत की दुआ दें और बहुत सारे आज़ाद हों, बहुत सारे बहाल हों, दुआया ज़िंदगी में बढ़े। और जितनों ने तौबा किया, इकरार अपने गुनाहों का किया है, खुदा के हुज़ूर उनके लिए मिन्नत करें। कुदूस सबर हक यीशु, ज़िंदगी के मालिक मसीहा ज़िंदा खुदा, हमेशा की ज़िंदगी तेरे पास है, तू ही हमेशा की ज़िंदगी का मालिक है। इसलिए तूने कहा अलदमम सबा इलाहिकल्लाह सदृशनमम अलतरम सबा इलाहिकल्लाह सदृशनमम, ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों, आओ उस मिरास में से लो, नाकुर लिकल्लाह सदृशनमम, जो तुम्हारे लिए तैयार की गई है। कुदूस खुदावंद ज़िंदा खुदा, कादिर मुतलक खुदा, जितनी जानों ने खुदावंद सच्चे दिल से खुदावंद तेरी पाक हज़ूरी में इकरार किया है, उनको छू खुदावंद, सर के बालों से लेके पाँव के तलवों तक खुदावंद, मैं उनको तेरे पाक लहू में महफूज करती हूँ खुदावंद। वो बरकत पाएँ, क़ुव्वत पाएँ, ज़ोर पाएँ, ताज़गी पाएँ, तवानाई पाएँ तेरे यीशु नाम में खुदावंद। उनकी ज़िंदगियों में तेरे खुदावंद रूह कुदस की हजूरी आए। अलतमम सबाइला रिकल्लाह से दृश्यन तमम, कादिर मुतलक खुदा, ज़िंदा खुदा, ज़िंदगी के मालिक मसीहा, तो इसलिए आया कि लोग ज़िंदगी पाए और कसरत की ज़िंदगी, हमेशा की ज़िंदगी खुदावंदा जारी और सारी कर दे खुदावंदा। एक एक रूह जान बदन को छू, क़ुव्वत दे, बरकत दे खुदावंदा। मैं तेरी खात्मा होते खुदावंदा, इनको खुदावंद तेरे यीशु नाम में बरकत की दुआ देती हूँ खुदावंद। ये बरकत पाए, तुझ में भरे खुदावंद, तेरे नाम को मुबारक दे, तुझे जलाल दे खुदावंदा, और तेरे बड़े और अजीम कामों को खुदावंद अपने लबों से हमेशा बयान करते रहें और तेरे नाम की गवाही देते रहें कि हमारे खुदावंद ने, यीशु ने हमारे लिए बड़े और अजीब काम किए। उसने हमें बचाया और छुड़ाया, क्योंकि बचाने छुड़ाने वाला सिर्फ एक ही है, कादिर मुतलक खुदा। तो उनकी जिंदगियों में जलाली काम कर खुदावंदा, कुव्वत और कुदरत वाले खुदा, अपनी कुव्वत से छू खुदावंदा, तेरा पाक लहू आए खुदावंदा, एक एक रूह जान बदन पर खुदावंद तेरा पाक लहू आए खुदावंदा। हर तरह की बीमारियां खुदावंद तेरे यीशु नाम में खुदावंद छोड़े इन बदनों को। अलतरम सबा इलारिको लॉर्ड जबरशनमम अलजमम सबाइना निकल लॉर्ड जबरशनमम, क्योंकि खुदावंद ये बदन तेरे पाक रूह का मक़दस है खुदावंदा। और तेरा कलाम फरमाता है जो मेरे मक़दस को बर्बाद करेगा मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। तो खुदावंद दुश्मन इब्लीस के सारे मंसूबे जो इनके रूह जान बदन के खिलाफ है, सेहत तंदुरुस्ती के खिलाफ है, रुपए पैसे के खिलाफ है, कारोबारी जिंदगी के खिलाफ है, वो सब तेरे पाक
रूह की आग में जलकर पाक बसम रूह और की खत्म आग, हो यीशु के खुदाम। कातिल तेरे नाम रूह में में ये आगे जल बढ़े जाए, खुदामदा, जल जितनों ने जाए खुदाम पाक इकरार किया है और जो पहले भी खुदाम इकरार कर चुके हैं खुदामदा, तो उनको ताजगी बख्श Yes, खुदामदा, Lord, yes, कुव्वत दे yes. खुदामदा, In the name अपनी of कुव्वत से, Jesus. अपने Yes, मसा Lord. से भर खुदामदा, रूह कुदस की ताजगी आए खुदामदा जिंदगियों में, Yes. और खुदाम तेरा यस्सु नाम इज्जत और जलाल पाए। कादर मतलब खुदा एक एक को छू और बड़ी बनकर दे, तेरे यीशु मसीह नासरी नाम में ये दुआ मांगती हूँ। जितने ईमानदार दुआ गो हैं वो अपना दायां हाथ और इस ये टीम जो है दुआया वो सामने आ जाए। अब मेरे साथ आप आ जाएं, सारे दुआ करने वाले लोग जो हैं वो आ जाएं जो